Good morning, children. So, in the class, yesterday's class, we have studied about homeostasis fever. Okay. So, with this, we have come to the end of all the various characteristics which are seen in the living beings. Living beings के हमने दोबारा से एक बार headline कर देता हूँ और plan कर देता हूँ. That is all the living beings show growth, development, movement, locomotion. Locomotion are not shown by everyone, but there is most majority of them are showing. Then we are even seeing that the living beings have an ability of to respond to stimuli. They can reproduce. They are definite life cycle. They are definite organization. They are metabolism, and they are having homeostasis. Okay. So these many properties are there in the living beings. ठीक है. तो लिविंग बीइंग जो है वो अपने आप में बड़ी यूनिक चीज है. वो बड़ी ही यूनिक चीज है. और इतने यूनिक होने के कारण क्या है, लिविंग बीइंग जो है they are having an ability to change the world also. That is non-living thing also. And there is always an interaction between living and non-living. Now come to the second part of the chapter. The chapter is actually a combination of two different chapters. So the second part क्या है chapter का? Second part of the chapter is saying that is the classification. है ना? कि हम कैसे करें? How to study living beings. So since we have come to know that there are so many that is properties are found in the living being. From the basis of this, if we differentiate between the living world and non-living thing, we will come to know that there are around exact number तो हम कह भी नहीं सकते. जब बुक लिखी गई थी, this book, NCERT book, very old book, it is 15 years old, है ना? दुनिया में 15 साल कोई एक चीज टिकती नहीं एक जगह. हमारा NCERT का सिलेबस वहीं अटका हुआ है 15 साल का. 16वां साल लग गया है ना? अभी तो दाढ़ी मुझ से भी आ जाएगी किताब में से. इतना ओल्ड बुक हो गया है. इस बुक में से अगर हम 15 साल पुरानी ये बुक है तो 16-17 साल पुराना डेटा होगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट जो स्पीशीज के नंबर लिख रखे हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी ओल्ड डेटा. और उसके हिसाब से हमको वहाँ पे दिखा रखे हैं दैट इज हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर. लेट अस सी. मैं इसको यहाँ से पढ़ लेता हूँ. So this old 15-year-old book says that the number of species that are known and described ranges between 1.7 to 1.8 million. मतलब किताब के हिसाब से जो 15 साल पुरानी किताब है उसके हिसाब से 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज हैं दुनिया में. The number has gone to very much. ठीक है. But the data which is not updated in your book. रोजाना नई डिस्कवरीज हो जाती है. So many species. Now you think about the so many different diseases which we come to know, which are caused by certain type of virus or certain type of worms or certain type of organisms. ये सभी तो नए डिस्कवरी हुए हैं, है ना? और कई सारे नए. Now actually क्या होता है? There are so many places in the world where we are not even gone. कम से कम 15 साल पहले तो नहीं गए होंगे जब वो मुझे है ना? तो क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट इतना गीला और इतना ह्यूमिड और इतने स्लशी रहते हैं कि देयर पीपल आर नॉट गॉन, है ना? दैट्स डेप्थ ऑफ द सी वेयर पीपल कुड नॉट गो दैट टाइम बिकॉज़ वी नेवर हैड फैसिलिटीज. ठीक है. देयर आर नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच आर द पैरासाइट्स आर लिविंग इनसाइड. We are not operated them at that time, but अभी हमने कईयों को खोला है, कईयों को काटा है, चीरा फाड़ी करा है. तो we come to know that there are also some parasites and some symbiotic organisms are living. ठीक है. There are some other organisms which are living elsewhere. So the things are discovered as and when the development takes place, as and when sometimes accidentally some organisms come in contact, say in our in our site. Sometimes when we are discovering something, कुछ और की स्टडी कर रहे थे, कुछ निकल जाता है. कुछ लोग जियोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस, है ना? कोई फॉरेस्ट में गए, कोई रेन फॉरेस्ट में गए, कोई स्लशी एरिया में गए, कोई मार्शेस में उतर गए, कोई कहाँ पे. तो ऑल दीज प्लेसेस सम न्यू डिस्कवरीज आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस. So the question is that why such a large number of biodiversity? Why such a large number of organisms exist on this earth? क्वेश्चन तो यही है. हमारे दिमाग में भी आता है ना, कई बार हम कहते हैं ये भगवान ने ऐसी गंदी सी छिपकली को क्यों बनाया? ये व्हाई हाउ डज दिस स्पाइडर लुक, व्हाई गॉड हैज एवर क्रिएटेड दैट. कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता. आपने भी बोला होगा सी सो अगली इट इज, व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड इट.
but there is definitely some reason for this. They are created. They are playing some specific role in their ecosystem, and that is why they are there. They may be good or they may be bad. They may be disease causing or they may be disease healing. They may be parasite or they may be symbiotic. They may be photosynthetic or they may be some other. So there are different type of organisms which we see around us. They may be insects. They may be reptiles. They may be mammals or they may be something else. तो अब क्वेश्चन ये है कि why such a large number of diversity there at all? भगवान ने बनाया ही क्यों? अगर एक तरह की चींटी से काम चल रहा था तो इतनी सारी वैरायटी की चींटियां क्यों बनाए? If a particular type of, suppose eagle is there, then what is the need of hawk? And if hawk is there, what is the need of vulture? And if vulture is there, then what is the need of crow? They all are eating dead bodies only. तो एक से काम चल जाता ना? God should have created only one. Why so many species of spiders are there? Some are very big, some are very small, some are dangerous, some are not so dangerous, some are ugly looking, some are good looking, some are having some type of bright color, some are having dull color, some are colorless, even you cannot see them. Variety of fishes are there, variety of snakes are there. Question यही है हमारे दिमाग में कि why God has created so many varieties? क्या मजा आ रहा था भगवान को इन सबको बना करके? 10, 15, 20, 100, 200, 500 स्पीशीज बना लेते, एक आम बना लेते, एक अमरूद बना देते, पपाया बना देते, गुआवा बना देते, पोमेग्रेनेट बना देते, गेहूं की स्पीशीज बना देते, चावल बना देते, कुछ दालें बना देते, कुछ टाइप के मसाले बना देते, कुछ टाइप के बेवरेजेस बना देते, कुछ और बना देते, हम बना देते 20-50 दूसरी स्पीशीज बना। व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड लायन, टाइगर, पैंथर, दिस दैट? Question is always there. And sometimes आज हम आप लोग आज 11वीं क्लास में ना, मतलब आप 16-17 साल के हो गए। 16-17 साल में definitely you have asked this question sometime or other to your parents or to your elders. Or why so this animal is created? पहले तो पूछे भगवान हमको किसने बनाया? भगवान ने बनाया होगा। अच्छा भी कुत्ते को होगा, हाँ तो वो बिल्ली को क्यों? छोटे रहूं नन्हे तभी पूछा होगा आपने ऐसा। तो बोले कि इसको क्यों बनाया? सच डर्टी लुकिंग क्रीचर, पिग। वो भगवान ने कहा, पापा ने कहा बाबा बेटा ये ऐसा नहीं है, ये तो बहुत काम की चीज है, ये नहीं होगा, सफाई कौन करेगा? तो ऐसा हर ऑर्गन का कोई रोल है, लेकिन वो रोल प्ले करने के लिए देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म। व्हाई सो मेनी स्पीशीज? व्हाट इज द नीड ऑफ, अकॉर्डिंग टू बुक इफ वी गो, व्हाट इज द नीड ऑफ 18 लाख स्पीशीज? 18 लाख। और आई सेड दिस इज द ओल्ड डेटा। आज शायद होंगे 25 लाख हो गए होंगे। 15 साल में तो बहुत सारी नई डिस्कवरीज हुई है, एंड द साइंस मल्टीप्लाइज विद द टाइम, बिकॉज उस टाइम की नॉलेज और आज की नॉलेज, पुरानी नॉलेज नई नॉलेज को जन्म देती है। तो हमारे पास बहुत सारा नया रीजन आ गया इसको स्टडी करने का। हमने बहुत सारी नई टेक्निक डेवलप कर ली, तो आज हमारे पास और बहुत सारे अच्छे तरीके हैं उनको समझने के। तो अब ये है, तो पहला क्वेश्चन तो ये कि व्हाई आर दे देयर एट ऑल? And the second question, if we want to study, how will we study? If we want to study all the organisms, एक आदमी मान लीजिए भगवान ने उसको 100 साल की उम्र दी है, 100 years। 100 years के अंदर एक साल का 365 डेज होते हैं। तो ही will have 36500 these many years हो गए, डेज हो गई। वो कुल मिला के 36,500 दिन जी पाएगा अगर डेज के हिसाब से हम कैलकुलेट करें। आप अपनी उम्र कैलकुलेट कर लीजिए, आपको संसार में कितने दिन होंगे? क्या ही दिन होंगे यार, क्या दिन होंगे? 15 साल का मल्टीप्लाई करो 365 को क्या आ रहा है? कोई 5,000 6,000, कितने ही दिन हुए हैं? अगर मैं कहता हूँ कि इतने दिन है और इतनी स्पीशीज है, मान लीजिए 20 लाख स्पीशीज है, 20 लाख, तो हमको पर डे पैदा होने वाले दिन से, द डे व्हेन आई बोर्न, फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, हाउ मेनी स्पीशीज आई विल हैव टू स्टडी? कम से कम 60 स्पीशीज एवरी डे मेरे को पढ़ना पड़ेगा।
एटलीस्ट 60 स्पीशीज मेरे को रोज पढ़ना पड़ेगा, तब मैं मरने के दिन तक, अगर मैं पूरे 100 साल जीऊं, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स. If I would have started my study of living beings right from the age of day one, if I continue my study till the last day of my life, that is 100 years, that is 36,500 day. और तीसरी बात, मैं उनको सबको याद रख सकूं. चौथी बात, मैं उनको सबको नोटिफाई कर सकूं, उनके करेक्टर्स मेरे को याद हो, मतलब मैं लिख पाऊं है, और सारे फोटो वोटो सब कुछ मैं रिमेम्बर कर पाऊं, तब कभी जाके मैं पूरी जिंदगी में सारी स्पीशीज को पढ़ पाऊं. बट यहाँ तो कोई ठिकाने ही नहीं. इंसान ने तो पैदा होने तो क्या, मतलब 2 साल तक तो उसको नाक पहुंचना भी नहीं आता. ठीक है, 3 साल में तो पहली बार वो स्कूल आता है, तो उसको टीचर बोलती है ए फॉर एप्पल, तो उसको मालूम पड़ता है इसको एप्पल कहते हैं. बी फॉर बनाना, तो उसको मालूम पड़ता है इसको बनाना, मम्मी तो केला कह रही है ना. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो वी लर्न वेरी लेट, अनलाइक ऑल अदर स्पीशीज. चिड़िया का चूजा होता है ना, पैदा होती जान जाता है, चलना फिरने लग जाता है, मम्मी क्या खा रही है वो भी खाने लग जाता है, एंड ही नोज कि क्या खाना है क्या नहीं खाना. अनलाइक ह्यूमन बीइंग छोटा होता है ना, क्रीप करता है, तो जो सामने आ गया सब खा जाता है. कल के पेपर में आया, वो छोटा सा बालक गणेश जी की मूर्ति खा गया और भगवान पे निकल गया. एनीवे, जो भी है. तो आई नीड टू से ह्यूमन बीइंग्स आर द लास्ट ऑर्गन टू अंडरस्टैंड थिंग. बाकी सारी स्पीशीज जो होती है वो दे बिकम वेरी मच एक्सपर्ट फ्रॉम द फ्यू डेज. ज्यादा एक सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर सारी स्पीशीज एक्सपर्ट हो जाती है. दे नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, एंड वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो, एंड बर्ड्स नो हाउ टू फ्लाई एंड हाउ टू जंप, एंड क्या कहते हैं, monkeys. I was other day I was standing on my terrace, monkeys आ गए मेरी छत पे, तो छोटा सा गार्डन है, तो मैंने भगा दिया. तो भागे, मतलब छोटी छोटी नन्हे नन्हे से monkeys, and they are mother is sitting and वो इधर से उधर कूद रहा है, उछल रहा है. मैं देख रहा हूँ, इसको डर नहीं लग रहा है, इससे माँ इसको कह नहीं रही है. But small monkey know how to jump, how to hold branches. इंसान इसको पता ही नहीं, बैठता है तो पलंग से नीचे गिर जाता है. तो वी आर द स्लोएस्ट ऑर्गन. तो क्या पढ़ेंगे डे 1 से. हाउ यू बी स्टडीइंग फ्रॉम द डे 1, है ना. तो और 60-65 के आते आते तो हमारी मेमोरी ऐसे हो जाती है, याद ही नहीं रहता है. चाबी कहाँ रखी पता ही नहीं है. मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, दादा दादी को बोलते कि दादी जी अगर आप मंदिर जाओगे तो चाबी पड़ोसियों को दे करके जाना. तो दादी जी पता नहीं किसकी चाबी दिया है. मंदिर जाकर आप चाबी ढूंढ रहे हैं, चाबी नहीं है, चाबी पड़ोसी को पूछा तो नहीं दिया, पता नहीं किसको कैसा चोर के आपने पकड़ा दी है चाबी. ठीक है. तो मेमोरी इज विद द एज हमारी कम होती जाएगी. तो हम क्या 60 स्पीशीज रोज पढ़ लेंगे क्या? अंश पढ़ना एक बात है, कैन वी रिमेम्बर? हमने तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है बाल्यकाल से आज तक. डू यू रिकलेक्ट व्हाट यू स्टडीड इन क्लास 4 इन एसएसटी? तो फिर भाई ये सब बेवकूफी है. हाँ, तो क्वेश्चन इज सर आप हमको ऐसे परेशानी क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़े? व्हाई शुड वी स्टडी 18 लाख स्पीशीज? हमारी क्या काम आएंगी? ये भी बात सही है. व्हाई शुड वी स्टडी 18 लाख स्पीशीज? हमारे तो आसपास जो है उनको पढ़ लें. What pulses we eat, that we must know. What grains we eat, what dry fruits we eat, what spices we use, what beverages we get, what medicines we get, what timber we get, what क्या कहते हैं वो oil, resin and other products we get. आपको तो वही जानना. Why should I know about कि वो मेघालय के जंगल में कौन सा टाइप का प्लांट उगता है, या स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स में कौन सी टाइप की क्या कहते हैं जिम्नोस्पर्म उगता है? What I have to do? एंड वो जो मैंने इस चैप्टर के बिगनिंग में, इस बुक के बिगनिंग में वो फोटो देखा था, कौन सा, ये हिप्पोकैम्पस. व्हाट आई हैव टू डू विद दिस हिप्पोकैम्पस? होता होगा यार समुद्र में. नीदर आई हैव सीन इट नॉर आई एम गोइंग टू सी इट इन माय लाइफ. ज्यादा क्या होगा अगर कभी किसी अच्छे एक्वेरियम में गए तो विल बी एबल टू सी देम. सो द क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी स्टडी? ठीक है. तो उसका कारण भी, उसका कारण यह है कि दैट इज व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट द लिविंग बीइंग,
that we must know, because all the organisms are directly or indirectly related, directly or indirectly related to us. Maybe that they are food providing, maybe that they give us some medicine, or they give us some type of food, or they may be giving some type of beverages, or they may be giving some type of medicine, और कुछ न कुछ चीजें उनसे मिल रही होगी, तो इसलिए तो हमको पढ़ना ही है। फिर अभी देखे ना, अगर मैं मानता हूँ कि एक काऊ है, वो मेरे को काम किए बिकॉज मिल्क देती है, तो मेरे को काऊ पढ़ना है, तो मेरे को ये भी पढ़ना है कि काऊ को नुकसान कौन कौन करता है। तो लायन है, टाइगर है, पैंथर है, ये सब उसको नुकसान करते हैं। तो आई टू स्टडी अबाउट दैट। इवन देयर आर सम डॉग्स व्हिच आर आफ्टर दिस, हाँ, इवन सर्टेन टाइप ऑफ अदर एनिमल्स, हाइना वाइना, तो मेरे को उनके बारे में करना। डॉग गाय क्या खाती है? ग्रास खाती है। तो आई टू स्टडी अबाउट द वैरायटी ऑफ ग्रास व्हिच इज फूड फॉर माय काउ। At the same time, there are other organisms also which may share this cow grass। हो सकता है वो भी हमारे घास को हम जो गाय के लिए लेके आए, या हमें किसी जंगल में हो गए या मैदान में हो गए, where those animals may also come and eat them up, like wild buffaloes are there, like deer are there, like zebra is there, like giraffe is there. So they all are grazing animals. So naturally, I have to study about them also, so that how to keep them away from my field, so that they may not enter, how to create मैं कौन से टाइप का जानवर पालूं कि उनसे ये दूर रहे and all. Then there are number of organisms which will be causing disease to them, so I have to study about them also. So there are number of plants which may be used to produce medicines also. तो ऐसे धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, हमारा सर्कल बढ़ता होता जाएगा। अभी तो मैंने केवल गाय का ही लिया, ओनली वन एग्जांपल ऑफ काउ। नाउ वी रिक्वायर सो मेनी थिंग्स, है ना। काउ से तो हमको केवल दूध मिल रहा है, इसके अलावा हमको क्रॉप से ही है, हमको वेजिटेबल्स से ही है, हमको देयर आर सेवरल प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक कोकोनट इज देयर, देयर आर सम अदर टाइप क्या कहते हैं बेवरेजेस, जैसे चाय है, कॉफी है, वो हमको चाहिए होती है। कुछ प्लांट होते हैं जिनके फ्रूट मीठे होते हैं, तो हमको चाहिए होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जिनके वेरियस पार्ट्स जो है दे आर बिकमिंग फूड, लाइक पोटैटोज आर देयर, है ना। किसी का स्टेम, किसी का क्या, तो उनके सबके बारे में तो आई टू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ देम, how to increase their productivity, how to control those pests which are causing damage to them. तो ऐसे एकदम पढ़ते जाएंगे, हमारा जो एरिया वो बड़ा होता जाएगा। So when we talk about fish, कि वो कौन कौन सी फिश है जो हमारे लिए फूड बन सकती है, मे बी कोलिडॉन, मे बी वो बॉम्बे डक क्या कहते हैं उसको, कहते हैं, देयर आर शार्क, देयर आर सम अदर टाइप ऑफ फिश, है ना। तो मैं उनके बारे में पढ़ूंगा, तो मेरे को ये भी जानना पड़ेगा कौन सी अदर फिश है जो कि उसको नुकसान कर सकती है या उनके साथ फ्रेंडली रहती है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है ये हिप्पोकैम्पस भी कहीं ना कहीं हमसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली तो नहीं हुआ, इनडायरेक्टली। So that is why we must know about all of that. That is the reason we want to study the living beings which are prevailing, which are living, which are on the earth, existing on the earth. तो ये कारण है कि हमको पढ़ना। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लिखा है। If we look around, what will see? Large variety of living organisms, be it be potted plants, insects, birds, pets, animals, and plants, etc. There are several organisms that you cannot see by a naked eye, but they are existing, which are there around you. If you were to increase the area and make the observation in the range of the variety of organisms you see will increase. अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको नई नई स्पीशीज मिलती है जो कि आपको आपके घर के आसपास नहीं मिल रही। If you go to some क्या कहते हैं some hills, you'll find different type of plants and different type of animals which are not existing in your area. If you go to some beaches, you will find different type of animals and fish and other things. So yes, obviously, if you were to visit a dense forest, you will probably see much greater number of the kinds in the living organisms, each of the different kind of plants and animals and organisms that are representing species. अब पहले हम species को पढ़ेंगे क्या होती है, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। The number of species that are known and described between 1.7 to 1.8 million, very old data.
This refers biodiversity. ये जो अपन को विभिन्नताएं दिख रही है ना, ये जो हमको विभिन्नताएं दिख रही है, आपको स्कूल का कैंपस अभी शायद याद नहीं होगा, 2 साल से आप कभी स्कूल में आए नहीं, आए तो होंगे एक साल का बाद, लेकिन आपको कभी टाइम नहीं मिला होगा to visit and you to see. So we got variety of plants in our school campus. कोई दूसरे स्कूल है ना, एक दो पेड़ उगाते हैं, फोटो छपवाते रहते हैं अखबार में। यहाँ स्कूल में 1 इंच की जगह नहीं बची जहाँ हमने पेड़ नहीं उगा रखे। एवरीवेयर प्लांटेशन, एवरीवेयर ग्रास, एवरीवेयर जगह ही नहीं है भाई साहब, जो थी वो पूरे को हमने ऑक्यूपाई कर रखा है। अदर स्कूल का फोटो लेते हैं और वो नेता का नाम, ये नेता का नाम, उसका वो एक ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाएगा, फोटो खिंचाएगा, वो 10 जने उसके साथ में हाथ लगा कर फोटो खिंचाएंगे, वो चौंचलेबाजी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इतनी सारी वैरायटी बायोडाइवर्सिटी हमको स्कूल में मिलती है, ठीक है। और अगर आप बायोडाइवर्सिटी को ज्यादा अच्छा देखना चाहते हैं तो गो टू डीप सी, यू हैव टू गो टू डेंस फॉरेस्ट, you have to go to क्या कहते हैं at the bank of ponds in a forest, किसी तालाब, फॉरेस्ट के अंदर कोई तालाब हो, उसके किनारे पे आप बैठ जाइए, आपको वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलेगी, because practically all the species come to drink water in the same pond. So in the different hours, different minutes, different time of the day, different part of the day, you will find that how कभी lion भी आएगा, कभी हिरन भी आएगा, कभी क्या कहते हैं ज़ीब्रा भी आएगा, तो कभी जिराफ भी आएगा, तो कभी छोटे बर्ड्स भी आएंगे वहाँ पे पानी पीने, तो कभी बड़े बहुत बड़े वाले एनिमल्स भी आएंगे, तो सभी वहाँ पे आएंगे। तो यू कैन सी बायोडाइवर्सिटी। So you should remember that as we explore new areas, even old one organism are continuously, new organisms are continuously being identified, ठीक है। नई जगह पे जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, that not all species are found everywhere, पहली बात। दूसरी बात, the species are adapted to live in a particular area, तो जो जगह की वही नहीं लगी, you cannot find that sea fish on your Chambal, and Chambal fish not in pond, not in the sea, है ना। stagnant water की fish आपको flowing water में नहीं मिलेगी, flowing water वाली stagnant water में नहीं मिलेगी। तो there are variation, and there are reasons where these organisms are. Now, however, there are some birds there वो very readily, some animals जो होते हैं वो very readily adapt हो जाते हैं to a new condition, ठीक है। तो अब क्या, as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world and they are known by local names. So local names से जान रहे हैं तो you can like I'll give you a very small a very easy example. आपके आप जानते हो कुत्ते को हम श्वान भी कहते हैं हिंदी संस्कृत में, तो श्वान है ना, हम बोलेंगे कोटा में श्वानों का आतंक चलते फिरते बच्चों के ऊपर हमला कर रहा है, तो काफी कुछ हो गया। तो वन ब्लॉगर जो है he want to write a blog on the श्वान इन हिंदी, और हिंदी में या फिर उसको ट्रांसलेट कर लेता है। तो मान लीजिए उसने श्वान लिखा, तो श्वान 4 पैर होते हैं, श्वान के 2 कान होते हैं, श्वान की एक लंबी सी टेल होती है, श्वान की टेल हिलती रहती है, जब वो खुश होता है तो टेल हिलती है यार, and you have written something and you have converted it into and you have stated that the swan is a name, so name should not change। तो आपने जो लिखा उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया और उसमें भी श्वान लिखा, एंड उसमें लिखा श्वान इज गॉट 4 legs, it has got 2 ears, it has got 2 beautiful eyes, it has got a long curved tail, and it can express the happiness and all। अब जो बंदा अंग्रेज है वो देखे थे यार वहाँ तो श्वान बर्ड को कहते हैं, और उनकी तो बर्ड जो है उसके 2 ही पैर होते हैं, and it doesn't have curved tail कहाँ होती है, तुम बोला थोड़ी तो curved tail होती है, श्वान की टेल कर्व नहीं होती है, and they cannot move their tail at all, and their body is not covered by hair, and बहुत सारी चीजें लिखी, तो it may conflict, it may make confusion, it may mislead। So the same species may be known by different names in the different places, and one name of a species in one place is known for some species, or other place it may be known or it may be used for some other.
To avoid all these confusion, एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम थे कैरोलस लिनियस। क्या नाम है उनके? कैरोलस लिनियस। वैसे उनका नाम था कार्ल वॉन लिन, लेकिन उन्होंने अपने नाम को भी चेंज कर दिया। कार्ल वॉन लिन से उन्होंने ला करके अपना नाम कर दिया कैरोलस लिनियस। और उन्होंने कहा कि जितने भी स्पीशीज है दुनिया में, उनके सबके नाम दो नाम के होंगे। He was the first person to give such idea. He said the name of all the organisms should be consisting of two parts, two names. One is the name of species itself, and other is the name of genus. इस टेक्निक को, इस मेथड को, इस मेथडोलॉजी ऑफ नॉमेनक्लेचर को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल nomenclature. This consists of two names. One is genus name, and second one is species. ठीक है, एक जीनस का नाम होगा और एक, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम, ये मेरा नाम और ये मेरी फैमिली है, माय फैमिली नेम। There are so many Xaviers. I am Xavier, my wife is Xavier, my children are Xavier, my father was Xavier, my mother was Xavier, उनके father भी Xavier थे, उनके father भी Xavier, उनके father भी Xavier, उनके father भी Xavier। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चल रहा है, चंद्रगुप्त से लेकर के अब तक। तो पहले भी हो रहा होगा, चंद्रगुप्त भी तो किसी गुप्त की संतान रही होगी। तो ये जो नाम है वो चलते आ रहे हैं, पता नहीं कहां। ये बता रहे हैं कि दे आर द सेम लाइन ऑफ डिसेंडेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जितने भी लाइन है, पैंथर है, टाइगर है, ये सब के बड़े पापा जी जो है किसी जमाने में देख रहे होंगे और उनको हमने नाम दिया पैंथेरा, PENTHERA। अब वो पैंथेरा में नाम अलग अलग हो सकते हैं। और लाइन लाइन को हम लियो कहते हैं, ठीक है, और पैंथर को हम पैंथेरा, पैंथर कहते हैं, पैंथेरा। और लेपर्ड को लेपर्ड कहते हैं, LEPARD, ठीक है। और क्या कहते हैं, टाइगर को टिग्रिस कहते हैं। तो ये भाई साहब ने बताया, कौन कौन? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने कहा भाई सबके जो स्टार्टिंग है दैट इज कमिंग फ्रॉम पैंथेरा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे ऑल आर मॉडिफाइड एंड दे आर कम टू डिफरेंट स्पीशीज। ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी उन्होंने कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। कैरोलस लिनियस वाज अ स्वीडिश साइंटिस्ट। साइंटिस्ट तो क्या कहें इनको, फिलोसोफर ही थे, ऑब्जर्वर थे, ठीक है। तो ये स्वीडिश ऑब्जर्वर जो थे, नाम दिया होगा क्या होगा, इतना परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लेते हैं कंट्रोल F और यहाँ पे लेते हैं कैरोलस, CAROL, देखते हैं। ये रहा सामने तो बैठा है। तो ये रहे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस वाज द पर्सन हु हैज गिवन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडिश, और इन्होंने ये नाम देने का तरीका ढूंढा, है ना। और इससे क्या है कि जितने भी रिलेटेड स्पीशीज है दे ऑल कम टुगेदर, ठीक है। चलिए, ये तो एक बात हुई। आप एक साइंटिफिक तरीका क्या है किसी भी चीज को स्टडी करने का।
अच्छा, आप यहाँ पे इसको देख लीजिए, इसको लिखा है के नेम को जेनेरिक नेम और स्पीशीज के नेम को स्पेसिफिक एपिथेट, और नेम which is consist of two names are called by nomenclature. It was given by Carolus Linnaeus. It was a Swedish scientist, और ये करीब 17th सेंचुरी में उन्होंने दिए, बहुत पहले। और उन्होंने खुद ने जो है काफी सारी स्पीशीज को पढ़ा है, डिस्क्राइब किया और उनको अपने बुक में लिखा है। And the name of his book was Systema Naturae. The name of his book was Systema Naturae, in which he has described all these many species. Once again, I am reminding this portion for the periodic test is chapter 17. Now, breathing and gas exchange. तो आप याद रखिए, वही पढ़ के आने का है। तो कैरलस लीनियस आपको आप समझ गए है ना। चलिए, उसको पढ़ने से पहले हम एक बात और लिखते हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। हमने कहा बायोडायवर्सिटी कैसे पढ़ेंगे, तो स्टडी ऑफ बायोडायवर्सिटी इज फॉलोड इन 3 steps, है ना। Identification, second classification, and third nomenclature. If you had to study so many living beings, तो आपको सबसे पहले एक स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। Now there is a question, what is a species? What is a species? Now what is a species? कैसे पता करें? The species is a group of organisms which are having similar morphology, which are similar in their what they call structure, है ना, their habits, और उसके लिए हमने यहाँ पे टर्म दिया, दैट इज द स्पीशीज कैन बी डिफाइंड बाय फॉलोइंग 5 पॉइंट्स। Group of the species are always having or shared the same type of morphology. They share same type of anatomy. They share same type of behavior. They have same number of chromosomes. And the last one is that they can potentially interpret. They have similar type of क्या कहते हैं morphology. तो अगर मेरे यहाँ 2 आंखें, तो ह्यूमन बीइंग दुनिया में कहीं से भी लेंगे वहाँ पे 2 आंखें होगी, नाक 1, 32 दांत, 2 हाथ और एक के अंदर 5 भुजाएं हैं। So this will be the same. Now little bit difference can be there. It is acceptable. Same anatomy. If you cut inside, you will find the same type of organ system and their same location. Same behavior. अगर मेरे यहाँ पे लाइन जो है वो क्या कहते हैं घास खाता है, तो दुनिया में सारे लाइन घास खाते हैं, लाइन कहाँ पे घास खाने। सिंपल ये बात है कि इफ मेरे यहाँ पे घास लाइन जो है इफ इट इज अ कार्निवोर, तो दुनिया भर में वो कार्निवोर ही होंगे। इट कैन नॉट बी कि इंडिया में वो कार्निवोर मिलता है और बाकी जगह पे वो हर्बिवोर मिलता है। अगर किसी स्पीशीज में एक मेल बर्ड नेस्ट बनाती है, तो उस स्पीशीज की मेल बर्ड ही नेस्ट बनाएंगे दुनिया भर में। बिहेवियर नेवर चेंजेस। अब फोर्स कर दो तो बात अलग है। अब आप किसी इंसान को, किसी कुत्ते को जो है आपने हमेशा केवल ब्रेड ही खिलाया तो ब्रेड ही खाएगा ना, उसको पता भी नहीं है मीट का स्वाद कैसा होता, तो वो बात अलग है। तो मॉर्फोलॉजी भी सेम है ना, एनाटॉमी भी सेम, और क्या है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल आल्सो बी सेम। यू टेक ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 46, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर आल्सो, and if they are given chance in the nature, they can potentially interbreed if they belong to same species, ठीक है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि whether they are same species, member of same species और different species, पर भी आपको वो ऐसा लग रहा था तो आपने उनको आइडेंटिफाई करके सेम नाम दे दिया, नहीं, ये सब आपको करना होगा। So that's all for today, children. In the next class we will study how nomenclature, how classification and nomenclature is done. Good day, children. Enjoy your day.
and hope you are understanding. If you get any doubt, you can ask me, and I am always there to help you out. और पढ़ाई में जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। गुड डे चिल्ड्रन।